السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو متغیری خطی مساوات کے تیسرے حصے میں میں غازی مدثر احمد آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ آج یہاں پر ہم دو متغیری خطی مساوات کی جو پہلا طریقہ ہے ضریب یکساں کر کے متغیر اخراج کرنے کا طریقہ، اس کی مثالیں حل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آج یہاں پر پچھلی ویڈیو میں جو سوالات حل کیے اس کا اعادہ دیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دو مثالیں حل کیے تھے، اس کے اندر پہلی مثال اور یہ دوسری مثال۔ یاد رکھیے، ضریب یکساں کر کے متغیر اخراج کرنے کے طریقے میں آپ کو ہمیشہ کسی ایک متغیر کا ضریب یکساں کرنا ہے اور ان کی علامتیں مختلف رکھ کرنا ہے۔ یہاں پر y کا ضریب 3 اور یہاں پر بھی y کا ضریب 3، لیکن علامتیں چونکہ مثبت ہیں اور یہاں پر منفی ہیں، علامتیں علیحدہ علیحدہ ہونے کی وجہ سے اور ضریب یکساں ہونے کی وجہ سے ان مساواتوں کی جمع کی جاتی ہے۔ ویسے ہی دوسرے حصے میں b کا ضریب 5 ہے، یہاں پر بھی b کا ضریب 5 ہے اور علامتیں یکساں ہیں۔ علامتیں یکساں ہونے کی صورت میں ایسی مساواتوں کی تفریق کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، ضریب یکساں اور علامتیں الگ الگ تو مساواتوں کی جمع کرے گی، اور ضریب یکساں اور علامتیں بھی یکساں تب مساواتوں کی تفریق کرتے ہیں۔ تفریق کے عمل میں دوسری مساوات کی جو علامتیں ہیں وہ پوری الگ الگ ہو جائے گی۔ مثبت کی علامت منفی ہو جائے گی اور منفی کی علامت مثبت۔ جیسے یہاں پر مثبت کا a ہے لیکن اس کی اگلی علامت منفی ہو جائے گی۔ مثبت کا 5 بھی ہے، اس کی علامت منفی ہو جائے گی۔ مثبت کا 22 ہے، اس کی علامت منفی ہو جائے گی۔ ویسے اگر کوئی عدد یہاں پر منفی کا ہوتا تو وہ کیا ہو جاتا تھا؟ مثبت کا۔ تو یہ آپ کے لیے ایک مشقی سوال ہے۔ یہاں پر دیکھیں گے آپ y کا ضریب یہاں پر یکساں ہے اور علامتیں بھی یکساں ہیں۔ اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے اس ضمن میں آج ہم تیسری مثال لیتے ہیں۔ یہاں پر دو مساواتیں ہیں۔ جیسے آپ کو مساواتیں آئیں، آپ سب سے پہلے اسے کیا کریں؟ مساوات کے نمبر دے دیں، مساوات نمبر 1 اور مساوات نمبر 2۔ اب آپ یہاں پر غور کریں گے کہ یہاں پر متغیر y کا ضریب الگ الگ ہے اور علامتیں بھی الگ الگ ہیں۔ تو ان کے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ضریب یکساں کرنے کی کوشش کریں گے، جس طریقے سے پچھلی مثال میں ہم نے یکساں ضریب کے وقت متغیر کا اخراج کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہاں پر آپ اس 3 کو 6 بنانے کی کوشش کریں گے۔ 6 بنانے کے لیے آپ کو کوئی ایک ایسا عدد ڈھونڈنا ہے جس سے ضرب کرنے پر آپ کا جواب 6 آ جائے، تاکہ مساوات نمبر 2 میں y کا ضریب 6 اور مساوات نمبر 1 میں y کا ضریب یکساں ہو جائے۔ ویسے ہی اگر مساوات نمبر 1 اور 2 میں x کا ضریب یکساں بنانا پڑتا تو ہم 4 اور یہ 10 ان دونوں کو یکساں بنانے کی کوشش کرتے، وہ ہم آگے کی مثال میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر اس مثال میں مساوات نمبر 1 کو میں کیا کرتا ہوں؟ 2 سے ضرب کرتا ہوں۔ تو مساوات نمبر 1 کو 2 سے ضرب دینے پر کیا ہو جائے گا؟ یہ پوری مساوات کو، طرفین کو، دائیں جانب اور بائیں جانب جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کو آپ کو 2 سے ضرب دینا ہے۔ 2 کو 4x سے دینا ہے، 2 کو 3y سے اور 2 کو 18 سے۔ 2 سے ضرب دینے پر یہ 2 چوک 8x ہو جائے گا، 2 تیا 6y ہو جائے گا اور 18 ضرب 2 18 دونی 36 ہو جائے گا۔ اب مساوات 1 سے جو ہے مساوات نمبر 3 بنی ہے، یہ نئی مساوات اور ہماری پچھلی مساوات نمبر 2، اس کو غور سے دیکھنے پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر y کا ضریب یکساں ہو گیا ہے، علامتیں الگ الگ ہے۔ اس کے آگے کا عمل آپ کو آتا ہے کہ مساوات نمبر 2 اور 3 کی کیا کریں گے؟ ہم جمع کریں گے۔ مساوات نمبر 2 اور 3 کی جمع کرنے پر ہمارے پاس متغیر y کا اخراج ہو جائے گا۔ مثبت کے 6y اور منفی کے 6y یہ کٹ ہو جائے گے۔ آپ کو جو ملے گا 10x اور 8x یہ ملا کر آپ کو ملے گا 18x اور 18 اور 36 یہ ملا کر آپ کو ملے گا 54۔
अब यहाँ पर हमारे को मुतग़य्यर x की कीमत मालूम करना है, तो 18x मसावी 54 को मज़ीद हल करने पर हमारे को x मसावी ज़रब का 18 को मसावी के दूसरी यानी दाएं जानिब ले जाने पर वो तकसीम में चला जाएगा, नीचे नसब में चला जाएगा। 18 से उसकी तनसीक करेंगे, 18 एक 18, 18 दूनी 36, 18 54। तो इस तरीके से आपको x की कीमत 3 नज़र आए, 3 मिलेगी। यही x मसावी 3 को मसावत नंबर हम क्या रखेंगे, 1 में रखेंगे। मसावत नंबर 1 में रखेंगे तो ये मसावत नंबर 1 लिखा हूँ मैं, आप 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। तो x की जगह पर यहाँ पर हमें x मसावी 3 रखेंगे। x की जगह पे यहाँ पर 3 रखे, बाकी की मसावत का हिस्सा जैसा का वैसा, जमा 3y मसावी 18 जैसा का वैसा लिखे। इस 4 को और 3 को ज़र्ब करेंगे तो आपको हासिल होगा 12, जमा 3y मसावी 18 जैसा का वैसा। अगले हिस्से में मुस्बत के 12 को मसावी के दाएं जानिब लेकर जाएंगे, दाएं जानिब ले जाने पर मुस्बत के 12 उधर जाने पर मनफी के 12 हो जाएगा। 18 में से 12 तफरीक करने पर आपको 6 हासिल होगा। हमें यहाँ पर y की कीमत मालूम करना है, y के साथ यहाँ पर ज़रीब की शक्ल में 3 मौजूद है, उसको मसावी की दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो तकसीम में चला जाएगा। 3 से उसकी तनसीख करेंगे, 3 एक 3, 3 दूनी 6। तो हमें जो जवाब हासिल होगा y मसावी 2। जवाब में आप उसको मुरतब जोड़ी की शक्ल में लिखेंगे। पहले x की कीमत लिखेंगे, फिर y की कीमत लिखेंगे 3,2। आपके लिए यहाँ पर मश्क़ी सवाल हल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मुतग़य्यर x का इखराज कीजिए। यहाँ पर आपको मुतग़य्यर x का ज़रीब 3 है, यहाँ पर मुतग़य्यर x का ज़रीब कुछ नहीं यानी 1 है। तो आपको पता है कि इससे आपको ज़रब देना है मसावत नंबर 2 को, और चूँकि यहाँ पर 3x की अलामत मुस्बत है, यहाँ पर x की अलामत मनफी है, तो अलामतें मुख्तलिफ है। आपको मालूम है मसावतों के साथ कौन सा अमल करना है। तो आइए एक और मिसाल लेते हैं। x जमा 7y मसावी 10, 3x मनफी 2y मसावी 7। बिल्कुल पिछली मिसालों की तरह उन्हें सबसे पहले मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर मुतग़य्यर x का इखराज करना है। मुतग़य्यर x का इखराज करने के लिए यहाँ पर आप गौर करेंगे कि यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं यानी उसका ज़रीब 1 है, और यहाँ पर x का ज़रीब 3 है। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 को एक ऐसे अदद से ज़रब देंगे कि हमें वहाँ पर 3 हासिल हो। तो पूरी मसावत को हम क्या करेंगे, 3 से ज़रब देंगे, यानी पूरे अरकान को मसावत में मसावी के दाएं जानिब और मसावी के बाएं जानिब। तो 3 से ज़रब देने पर 3 ज़रब x 3x, 3 ज़रब 7y 7 तिया 21y, और 10 ज़रब 3 10 तिया 30। इस तरीके से हमें मसावत नंबर 3 हासिल हुई। अब आप गौर करेंगे कि मसावत नंबर 2 और 3 इनके इसमें x का ज़रीब यकसा हो गया है, लेकिन दोनों की अलामतें मुस्बत है। इससे पहले वाली मिसाल में दोनों की अलामतें अलग अलग थी, तो हमने उसको जमा किए थे। अब यहाँ पर अलामतें यकसा होने की शक्ल में हम कौन सा अमल करेंगे, हाँ, मसावत नंबर 2 और 3 में हम तफरीक का अमल करेंगे। तो मसावत नंबर 2 और 3 की तफरीक करने पर 3x मनफी 2y मसावी 7, 3x जमा 21y मसावी 30। तफरीक का अमल करेंगे। तफरीक के अमल में दूसरी मसावत की अलामतें तब्दील हो जाती हैं। नीचे की जो मसावत है उसकी अलामतें मुस्बत की मनफी, मुस्बत की मनफी, मुस्बत की मनफी हो जाएगी। अब चूँकि यहाँ पर 3x और ये 3x इनकी अलामत ऊपर ये मुस्बत और ये मनफी हो गए, इस वास्ते ये इखराज का अमल होगा, ये कट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे कि ऊपर मनफी 2y है और नीचे नहीं, मुस्बत के 21y नहीं बल्कि मनफी के 21y। तो अब दोनों की अलामतें यकसा है। अलामतें यकसा होने की शक्ल में जमा का अमल होगा। मनफी की 2y और मनफी की 21y मिलाकर हो गए 23y,
और जवाब के साथ लगेगी अलामत बड़े अदद की। अजीज़ तलबा, यहाँ पर काफ़ी तलबा गलती करते हैं, अलामतें लगाने में वो भूल जाते हैं। तो याद रखिए, अलामत यकसा है तो कौन सा अमल होगा? जमा का अमल करना है। 2y और 21y मिलाकर 23y। और जवाब के साथ याद रखिए, अलामतें लगाना मत भूलिए, जवाब के साथ बड़े अदद की अलामत। यहाँ पर 2y और 21y में बड़ा अदद 21y है और उसकी नई अलामत मनफी है, इस वास्ते आपको जवाब के साथ मनफी लगाना है। उसी तरीके से मसावात के अंदर मसावी के दाएं जानिब आप देखेंगे 7 की अलामत मुस्बत है और 30 की जो नई अलामत है वो मनफी है। यहाँ पर आप गौर करेंगे कि अलामतें इन दोनों की अलग अलग है। जब अलग अलग हो तो यहाँ पर तफरीक़ का अमल होता है। 7 में से 30 नहीं जाते, 30 में से 7 निकालिए, बचेगा 23। और जवाब के साथ याद रखिए, जवाब के साथ बड़े अदद की अलामत, बड़ा अदद यहाँ पर 30 है या 30 की अलामत मनफी है, इसलिए मनफी 23 आएगा। तो क्या करेंगे? अगर अलामत यकसा है तो कौन सा अमल? जमा का अमल और जवाब के साथ बड़े अदद की अलामत। और अगर अलामतें अलग अलग है तो कौन सा अमल? तफरीक़ का अमल। याद रखिए, जवाब के साथ बड़े अदद की अलामत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनफी 23y मसावी मनफी 23, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिए अजीज़ तलबा, यहाँ पर आप थोड़ा सी मिस्टेक कर सकते हैं। मनफी 23 को मसावी की दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो आप मुस्बत कर देंगे, नहीं, मनफी 23 और y के दरमियान में ज़र्ब का अमल है तो अमल का मुतज़ाद होगा। मनफी 23 और y के दरमियान में ज़र्ब का अमल होने की वजह से मनफी 23 मसावी के दूसरी जानिब जाएगा तो तक़सीम में जाएगा। तक़सीम में जाने पर आप याद रखिए, ये मनफी 23 मसावी की दूसरी जानिब लेकर गए तो हो गया है तक़सीम में। अब इन दोनों की तनसीख करेंगे तो ज़र्ब और तक़सीम के उसूल यकसा हैं कि पहले अमल कर लिया करें, 23 एका 23, 23 एका 23। जब तनसीख हो जाएगी तो देखिए कि दोनों की जो अलामतें हैं वो यकसा है या अलग अलग। अगर यकसा है तो जवाब मुस्बत का रहेगा, और अगर अलामतें दोनों में से किसी एक की भी अलग हो तो जवाब मनफी का रहेगा। ये आपके ज़र्ब और तक़सीम के उसूल की अहम बातें हैं, याद रखें। तो आपको जवाब आएगा मुस्बत का 1। मनफी मनफी कट हो जाएगा, दोनों की अलामतें यकसा होने की शक्ल में जवाब आपका हमेशा मुस्बत आएगा। इसमें ज़र्ब और तक़सीम में। और जमा और तफरीक़ में जवाब के साथ बड़े अदद की अलामत लगती है, याद रखें। y की कीमत 1 आई है। यहाँ पर y की कीमत हम मसावत नंबर 1 में रखेंगे क्योंकि हमें x की कीमत मालूम करना है, इसलिए मसावत नंबर 1 लिखें। x जमा 7y मसावी 10। y की जगह पर कौस के अंदर 1 लिखे, 7 से कौस की अदद की ज़र्ब करें, 7 एका 7, मुस्बत के 7 को मसावी के दूसरी जानिब लेकर गए, वो हो जाएगा मनफी। 10 में से आप 7 तफरीक़ करेंगे, आपको जवाब आएगा 3, x मसावी 3। जो कि y की कीमत पहले आई है, लेकिन जब हम उनका जवाब लिखते हैं तो याद रखिए हमेशा x मुहद्दिद पहले और y मुहद्दिद बाद में, या x की कीमत पहले और y की कीमत बाद में। मुरत्तब जोड़ी की शक्ल में हमेशा याद रखिए x की कीमत पहले लिखी जाती है, तो उसे 3,1 लिखे, 1,3 लिखने की गलती ना करें। यह आपके लिए मुश्किल सवाल है। यहाँ पर पिछले ही सवाल में आपने यहाँ पर इसमें x का इखराज करे थे, अब यहाँ पर आप y का इखराज करेंगे। यहाँ पर y का ज़रीब कुछ नहीं है और यहाँ पर y का ज़रीब 4 है। तो पहले सबसे पहले आप ज़रीब यकसा करें, यानी उस अदद से ज़र्ब करें, और अलामत यकसा है तो आपको पता है कौन सा अमल करना है। कुछ अगर मुश्किल पेश आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुक्रिया।